welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. On the 6th and 7th of May, a court-appointed team has been told to conduct a survey of the Gyan Vapi Mosque in Varanasi. Why is this significant? Because there are many devotees who still believe that the Gyan Vapi Mosque was built in the place of a temple which was demolished by the invader Aurangzeb. The survey, though, was ordered after a group of these devotees approached the court with a plea that they be allowed to offer prayer inside the mosque area all year round. Now, what is significant? That there is a place called Shringar Gauri inside the Gyan Vapi Mosque where once every year the devotees are allowed to go inside during Chaitra Navratra and offer prayers. These devotees said, we want that to be allowed to us all year round. The court said, okay, go inside, conduct a survey, especially given apprehensions of these believers that the images of worship inside the mosque may be eventually defaced or destroyed, and that process is already on. Now, the court has said that videography and a survey should be done and a report should be submitted to it. Except the Gyan Vapi Management Committee said, thanks, but no thanks. Leading one to ask, isn't this an open defiance of the court's orders? ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। नहीं सर, वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे बस। Masjid committee is grossly in contempt of the orders passed by the High Court as well as the orders passed by the Honorable Varanasi Civil Court. They filed their objections. Their advocate appeared. In presence of their advocate, this order is passed. And aggrieved by the order passed by the Varanasi Civil Court, they went before the High Court. And High Court single judge has rejected their petition. One is still at a loss to understand what exactly is the objection. The arguments one has heard so far is that no photography is allowed inside the red zone. They also say that non-Hindus cannot enter the mosque premises. They even suggest that there could be a possible law and order situation. By the way, each one of these concerns has been addressed and debunked already, which again leaves only two questions unanswered. Will the clerics, will the mosque management committee now dictate terms? Are they now going to be put at a pedestal even above the courts of our country? And also, why the resistance to a simple survey? What is there to hide? राम जन्मभूमि के समय जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो माननीय के मोहम्मद साहब ने दी थी। ये बातें हमारे पास में इतने नज़ीर हैं, बल्कि तथ्यों पर तो देखने की हमारी बड़ी लंबी परंपरा है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई भ्रम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नासमझी ज़्यादा है। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Majid Hydari, political analyst, is joining us along with Kaleemul Hafiz, president of the AIMIM in Delhi, Talha Amir Rashadi, spokesperson Rashtriya Ulema Council, Vijay Shankar Tiwari, national spokesperson of Vishwa Hindu Parishad. My first question is to you, Shazia Ilmi, spokesperson of the BJP, because the member of the management committee said, अगर कर को कोर्ट कहेंगे कि सर कलम कर दो, हम ऐसा थोड़ा ना कर लेंगे, गला थोड़ा ना काट लेंगे कोर्ट के कहने पे. They are just acting in self-defense. What do you say? So I would like to say, no. Firstly, let's not be so trivial when we talk of court and be so dismissive of any court ruling or hearing whatsoever. Secondly, because this is a sticky situation, we should not at all speak in a manner that can lead to any disturbance. So I will be the last person who would want to say something that would cause any turmoil. But I would want to question one point. That is about the opacity
in which this the mosque management wants to work. If you look at Mecca and Medina, even for the Hajj pilgrims, there is virtually a 3D version, VR version available. So I don't know what is the logic of not even admitting videography. So I don't get that. Because that is not no mosque anywhere works like that. There is nothing to hide. It's not a secret cult that is being practiced anywhere. So which is very unfair. And if indeed there is a structure where the Hindu brethren have been going and worshipping and they go, nobody should be stopping them at all. So I think that is very harsh. Okay. But at the same time, I would not like to say anything that disturbs the harmony Absolutely. of the that area. is not the because intention that is of anyone. sacrosanct. This is purely by the court. Is the word of, what happened at Ram Janmabhoomi went through the entire legal process right up till the Supreme Court, and that is what is being done here through the court. Then what is the problem, Talha Amir Rashadi? What is the problem? What is the fear? Why the objection? See, the thing is that the objection is not against the orders of the court. It is the right of the Masjid Committee to put an objection to the order. The basic problem is that the... Hello? हाँ जी क्या प्रॉब्लम है बताइए. वैसे आपने जो ऑब्जेक्शन किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑब्जेक्शन आपने हाई कोर्ट में किया. हाई कोर्ट में भी आपके ऑब्जेक्शन को अपहोल्ड नहीं किया गया. अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी हाँ जी मेरी पिटीशन हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर ली है, मैं नहीं करने दूंगा. मैं आ रहा हूँ. लेट मी कंप्लीट. व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक 1991 में आई थी. इसकी सेक्शन 4 ये कहती है कि 1947 के बाद जो भी इस तरह की वो थी कंट्रोवर्शियल इस तरह की प्लेसेस थी, रिलीजियस प्लेसेस, वहां पे जो उसका स्टेटस जो था 1947 में वही रहेगा. इसको एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि नरसिम्हा राव की सरकार लेके आई, इट सेज वेरी क्लियरली दैट द स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप आफ्टर इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी चेंज. स्टेटस यहाँ पर तो सिर्फ फोटो ले रहे हैं ना, स्टेटस कौन चेंज कर रहा है? अरे स्टेटस चेंज करने की बात नहीं है. आपको समझना होगा द सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन बार फाइलिंग ऑफ सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. सर कन्वर्जन तो कोई कर ही नहीं रहा. लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन. लेट मी बी वेरी क्लियर. लेट मी सर नो डू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन. लेट मी बी वेरी क्लियर. व्हाट इज द अपील दैट हैज गॉन इन द केस ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क? Nobody is saying कि मॉस्क को बदल के मंदिर बना दीजिए. Here is what the appellants have said. Just a second, don't create confusion. The appellants have said, and I quote, the appellants say there is a right to religion guaranteed by Article 25 of Constitution. We want that there is no interference to be made in performance of darshan, puja of goddess Ma Shringar Gauri, and the plaintiffs are praying for grant of temporary injunction to the effect that the defendants, which is the mosque management committee, be restrained from damaging, defacing, destroying the images of worship existing within the property. So basically जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि मां श्रृंगार गौरी का वहां पे मूर्ति है, it might be defaced or damaged. Please don't let that happen. Let videography happen. Why don't you want the videography to take place? हाँ, तो ये किसने मना किया है? आप उनके जो यासीन साहब जो सेक्रेटरी है अंजुमन कमेटी के, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उसके सेक्रेटरी ने यासीन साहब ने कहा कि आपको श्रृंगार देवी की मंदिर तक जाना, आप वहां जाइए वीडियोग्राफी कीजिए. हम ज्ञानवापी मस्जिद में आपको भाई साहब आप नहीं डिसाइड करेंगे ना कि कमिश्नर कहां तक जाएगा. ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि पूरे परिसर का वीडियोग्राफी होगा. द कोर्ट हैज सेड द एंटायर प्रेमिसेस शुड बी वीडियोग्राफ्ड. आपकी पिटीशन क्या है? आपने ये कहा कि भाई अगर इफ द कोर्ट सेज कि आपका घर डिमोलिश करना है, आप नहीं कह सकते ना मैं घर नहीं करने दूंगा, तुम बाउंड्री डिमोलिश कर दो. अरे भाई जो कोर्ट ने बोला है वही होगा ना. यू कैन नॉट डिसाइड दैट आई विल अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट योर ऑर्डर बट विद इन व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद. आप ये सुनिए, कोर्ट की बात है ना, तो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? हाई कोर्ट का कमेंट सुनिए. आई एम कोटिंग दी हाई कोर्ट. गो ऑन. हाई कोर्ट ने कहा कि एक जो पेटिशन पड़ी थी कोर्ट में ऑलरेडी ज्ञानवापी और इस इशू पे एक पेटिशन
वाराणसी गया कोर्ट में, कोर्ट ने इसे किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऑप्शन लिए द ऑनरेबल हाईकोर्ट सेड इन द ऑफ दिस कोर्ट आपकी जा रही है बिलो शुड वेट फॉर द verdict। Okay, I think we'll just fix your audio. आवाज जा रही है। Your voice is not audible. Just a second. विजय शंकर तिवारी ये बोला जा रहा है कि आप क्या एक तरीके से डर है, क्योंकि पहले जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो भी इसी तरीके से उठाया गया था, सर्वे कराया गया और फिर देखिए क्या हुआ। तो अब डर यही है कि जो अयोध्या में किया वो काशी में कर रहे हैं। देखो पद्मजा, जो भी बातचीत चल रही है इसमें तो केवल इतना ऑर्डर है भी कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने सारा का सारा पुरातत्व के जो विभाग है और उसके पहले ये सारी वीडियोग्राफी वगैरह हो जाए तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है पद्मजा कि पहले से बहुत सारे प्रमाण हैं कि वो शिव मंदिर है, वो वहाँ पर हिंदुओं का एक बड़ा केंद्र है और ये केंद्र उतना ही बड़ा स्थान रखता है जैसे वेटिकन क्रिश्चियन के लिए वेटिकन रखता है, मुस्लिमों के लिए काबा रहता है। ज्ञानवापी वैसे किसी मस्जिद का नाम हो भी नहीं सकता, ये स्थान हिंदू मंदिर है और ये केवल हम नहीं कह रहे, हमारे प्रमाण हमारे शास्त्र केवल अगर नहीं कह रहे, ये दुनिया भर के बहुत सारे अध्ययनकर्ता भी कह रहे हैं। 1824 में रेगिनेल्ट हैबर ने ये लिखा है कि ये कहीं से भी मस्जिद नहीं लगती है। वास्तव में 1669 में जो औरंगजेब का लिखा हुआ सारा मटेरियल बंगाल में छपा है, एस्थेटिक सोसाइटी ने छापा है, एक मिनट छापा है, उसमें औरंगजेब का सारा उनका प्रमाण देकर रखा हुआ है। और बाद में जो हुआ कि इसमें जो भी मंदिर गिराया गया था उसी की मटेरियल से बनाया गया ये स्ट्रक्चर है। दूसरा एडविन ग्रिप्स ने लिखा है, उन्होंने कहा ये तो वास्तव में हिंदू मंदिर ही है। यहाँ बाहर जो नंदी है, जो मंदिर द्वार है, इसकी तरफ विशाल प्रतिमा, वो मुंह उसका उसी तरफ है जिस प्रकार से हिंदू मंदिर होते हैं। तो ये इसीलिए नहीं जाने दे रहे कि इनकी पोल खुल जाएगी। सारी दीवारें हैं, अंदर का स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर है, सारा का सारा वो मंदिर है, केवल कहने के लिए मस्जिद है, इसलिए नहीं जाने दे रहे। जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं हम तो इसके अंदर नहीं जाने देंगे, फिर तो ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खड़ा होता है। आज आप ये बात हो रही है, आप अंदर नहीं जाने देंगे, फिर तो हम कहेंगे काशी पूरी तरीके से हिंदुस्तान है, काशी के अंदर किसी भी मुस्लिम के रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल हिंदू रह सकते हैं। फिर तो ये बात कही जाएगी पड़ेगी ना, कोर्ट ऑर्डेन्ड है, जस्ट फॉलो द कोर्ट ऑर्डर। कलीमुल हाफिज जी, देखिए ये सिविल जज के ऑर्डर के थ्रू एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुआ है और उसको 3 पार्टियों के लिए कहा गया है कि ये तीनों पार्टियां वो मौजूद रहें जब वो वीडियोग्राफी करे। ये डिसीजन पहले भी हुआ था लेकिन हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया और स्टे करके अब उस पर उनको इजाजत दे दी, अब बहाल कर दिया। उसको आपने गौर से नहीं सुना। जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो उन्होंने जिम्मेदार ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बात की, उसे आपने गौर से नहीं सुना। पहला तो उन्होंने ये कहा कि ये जब 3 पार्टियों के लिए है तो ये श्रृंगार मंदिर के लिए है, वहां जाएं और वो काम करें और उसकी करें, और मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, मस्जिद बैरिकेटिंग से अंदर है, बैरिकेटिंग के बाहर है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक सिक्योरिटी प्लान है 93 का, जिसमें ये इस बात की इजाजत है सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल आएंगे, और सिक्योरिटी पर्सनल जाहिर बात है सरकार आएगी और नमाजी आएंगे, अगर कोई बाहर का आएगा तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जब हमारी कोर्ट ने बात ही नहीं सुनी, हमारे वकील, ये वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी ब्रीच किसके हिसाब से है? ये आप सुन तो लीजिए मैडम, जिसपे ये सारा ये 93 जो सिक्योरिटी प्लान बना जब बाबरी मस्जिद शहादत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का एक सिक्योरिटी प्लान बना, सरकार ने बनाया और उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया। रेड जोन में ये सिक्योरिटी प्लान है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का, और इसे रेड जोन डिक्लेयर किया गया। इसमें जो है किसी आम आदमी के जाने की मनाही है। ऑफिशियल अपॉइंटेड टू गो इन। आप कोर्ट की पे आ रहा हूं ना मैं। हाँ, तो कोर्ट ने बोला है कि वो अंदर जाके सर्वे कर सकते हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद फिर मुझे मत बुलवाइएगा। नहीं, फिर आप बोलती रहिएगा। नहीं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए, तभी समझ पाएंगी आप। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे वकील
जो भी जिरह की वो इस जज ने सुनी नहीं। जब इस जज ने नहीं सुनी तो बोले अब हम इसको रिफ्यूज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं रिफ्यूज। अब अगर सिविल जज के ऑर्डर को एक पार्टी रिफ्यूज करती है तो एडवोकेट कमिश्नर का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जज को बताए जाके कि साहब एक पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया इसमें, फिर जज उसमें दोबारा से देगा। तो इस पे इतना हाउ हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? पूरे सारे चैनल प्राइम टाइम पे ऐसे चला रहे हैं को रिफ्यूज कर दिया, जबकि बीजेपी नहीं अरे नहीं सुनिए नहीं, उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिफ्यूज करेंगे इसको। आप इस बात को सुनाइए। और दूसरी बात आप अपील पे जाएंगे ना, बोलने का साबरीमाला का केस, सर्वे होना है, साबरीमाला में 5 देखिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस का, देखिए साबरीमाला के केस में क्यों रोका था बीजेपी ने? 5 जस्टिस का केस तो वो गलत था सर, 5 जस्टिस बेंच वो का गलत केस था और इसीलिए सरकार ने सिक्योरिटी दे करके एक्टिविस्ट को अंदर पहुंचाया ही ना। अब वो जाएगा आप तो बस आप इतना तो टाइम दीजिए, सुप्रीम वो कोर्ट ने बोला कि सबरीमाला में महिलाएं जाएंगी तो गई सबरीमाला में महिलाएं अंदर। इशू जो है और कोर्ट ने सरकार ने सिक्योरिटी देकर उनका अंदर भेजा। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, टिल द टाइम दैट इट वाज इवेंचुअली स्टेट, सरकार ने अभी वो उस पर गया हुआ रिव्यू के लिए। अभी देखिए मैडम अभी भी उसमें गया हुआ, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट का फैसला नहीं माना। अब दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा मेरा कहना ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का सोची समझी मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। पहले ये लफ्ज जिहाद लाए, फिर गौरक्षक लेके आ गए, फिर हिजाब लाए, फिर मीट लाए, फिर शोभा यात्रा लाए, फिर अजान और लाउड स्पीकर लिया, कलीमुल हाफिज साहब, और अब बीच में कलीमुल हाफिज साहब हर चीज को आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा नहीं बना सकते ना। कई सारे ऐसे डेवोटीज होते हैं जिनका बीजेपी से ना कुछ लेना होता है ना कुछ देना, वो खुद जाकर के कह रहे हैं कि भाई हमें डर है कि अंदर उनको डिफेस या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस बात पर रोक लगाई जाए। अब जो आदमी मंदिर जाता है वो बीजेपी समर्थक तो नहीं होता ना, कि हर आदमी जो जाता है ज्ञान वहां पे श्रृंगार गौरी सब बीजेपी वाले हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे को राम की प्रार्थना करनी है वो बीजेपी वाले, आप ऐसी बातें कर रही हैं, वो सिर्फ भक्त हैं जो कि चाहते हैं कि वहां पर जाके पूजा कर सके। सीनियर जर्नलिस्ट होकर ऐसी बात कर रही हैं आप कह रहे सीरियसली कि हर कोई जो वहां पर जाना चाहता है पूजा करना चाहता है सब बीजेपी के है? तब तो भैया 80% उनको मिलता, 80% इंडिया का वोट उनको मिलता। अगर 80% हिंदू है इस देश में तो तब तो बीजेपी कभी आउट ऑफ पावर ही नहीं होती किसी स्टेट में। कलीमुल हाफिज साहब क्या बात कर रहे हैं आप मस्जिद में पूजा अर्चना करेंगे, ये सरकार की शय पे हो रहा है, इसमें सरकार शामिल है। और दूसरी बात समझ लीजिए आप, ये पूरे मुल्क को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के दौर में इन्होंने पूरे मुल्क को बिल्कुल आग में झोंका, हजारों मुसलमानों की जाने गई। तो फिर ये बता दीजिए कि जिस कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है और जिस हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है, एक सेकंड, तो फिर हम फिर उसी मुद्दे पे आ गए ना कि हाई कोर्ट बीजेपी और संघ की साजिश में शामिल है। तभी कोर्ट पहले आदेश देता है और हाई कोर्ट उसे अपहोल्ड करता है। लास्ट में आके इतना बोर कर देते हैं आप ना, वही आपको तो एक वोट भी नहीं मिलता, उस हिसाब से तो सारे मुसलमान आपको वोट दे रहे होते हैं। नहीं आपने इतना बोर, अक्सर में वोटर को आपने इतना बोर कर दिया है और सारे मुसलमानों ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। उस तरह उस लॉजिक से तो आपको 20% में कम से कम 18% मिलता है। लोग आपसे बोर हो चुके हैं दरअसल हिंदू मुस्लिम सुनकर। बीजेपी ने क्या किया है, क्या नकारा है? क्योंकि मैं मुसलमान मस्जिद का जो डिसीजन आया वो आस्था के बेसिस पे आया। नहीं आप रहने दीजिए, नहीं क्योंकि मैं अपने को कोई माइनॉरिटी मानती नहीं हूँ और ना ही मैं कार्ड खेलती हूँ और ना ही मैं इस तरह के एहसास से कमतरी में रहती हूँ और ना ही मैं इसकी पॉलिटिक्स करती हूँ। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी जो है मुसलमानों, आप एक सेकंड शाजिया अलवी बिफोर यू रिस्पॉन्ड, कलीमुल हाफिज साहब, गोइंग बाय योर लॉजिक, गोइंग प्योरली बाय योर लॉजिक, कैन आई प्लीज गेट योर अटेंशन फॉर 30 सेकंड्स? गोइंग प्योरली बाय योर लॉजिक, आप कह रहे हैं कि भाई जो भी हिंदू मंदिर की बात उठाता है वो बीजेपी के इशारे पे उठाता है। आपके लॉजिक से, क्योंकि आप दिल्ली में आईएमआईएम के प्रेसिडेंट हैं, आपके लॉजिक से जहां कम से कम 80% हिंदू पॉपुलेशन है, दिल्ली में बीजेपी की 70 में से फिर कम से कम 55 सीटें तो होनी ही चाहिए थी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें हैं। एंड बाय योर लॉजिक आल्सो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन, आपकी कम से कम 10 सीटें होनी चाहिए थी। बट क्लियरली दैट हैज नॉट हैपेंड, सो लेट अस प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दैट लॉजिक। शाजिया आलमी, आंसर।
No, Padmaja, because I defy that logic. There is no logic in this logic. That is no logic in this. This defies logic. पर सर अगर कोई मंदिर के लिए जा रहा है कोर्ट में तो बीएचपी बजरंग दल का ही एजेंडा लेके जाता है क्या? अगर कोई कहता है कि मुझे पूरे साल श्रृंगार गौरी में पूजा करनी है तो वो वीएचपी का हो जाता है, क्योंकि हर कोई जो पूजा करता है वो वीएचपी है। ओके, शाज़िया आलमी स्पीक। इन संगठन का ये मूवमेंट है, इनकी डिमांड है, इसलिए आप इसको आम हिंदू को समझ जोड़िए। ओके, शाज़िया आलमी जस्ट अ सेकंड। ओके, शाज़िया आलमी स्पीक। Because my identity, you cannot force and thrust this Hindu-Muslim identity at all times, only because you have nothing else to say. There is much more to us than our religion. We have other needs. We have other aspirations. A poor Muslim and a Hindu and person from any, caste whatsoever needs a house, needs potable water, needs security. There are so many other things and factors that define us, who we are. So stop thrusting this down our throats all the time. We need more than a mandir and a masjid and a gurdwara. We need decent schools. We need vocations. We need skills. We need employment. We need to be employable. You got it? Behave yourself. They grow up, evolve, and let others evolve. Enough of this rubbish. Okay, शाज़िया आलमी आंसर इज डायरेक्ट चार्ज कि जब भी कोई एक मामला शांत होता है, जस्ट अ सेकंड, the anxiety is there because they know that eventually there was a survey of the Ram Janmabhoomi and then it snowballed to a position where finally the suit was decided in favor of the temple. Now the fear is कि वही चीज, the ground is being laid in Kashi also. Answer that. Kalimul Hafiz साहब, I'm asking your question, let her answer. भाई fear क्यों है? All over the world fear. Yes, let me answer. Why is there any fear? Tell me. Would you imagine anybody even touching or thinking about raising Mecca or Medina or the Vatican? This is Hindus have one country, India, and a smaller nation, Nepal. We cannot respect our Hindu brethren. We want to bully them. We should have been decent enough. Instead of fighting a court case, we should have said it's by all means yours. It's Babar. Who is Babar to us? Just a king. What is so? I mean, I don't understand. What is so Rouhani about Babar or Aurangzeb or Akbar? What is the connection with Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam? Yet we fought like idiots. Yet Muslims fought like idiots and made fools of themselves. So, I mean, I don't get you. I don't get you and your fight. I really don't get it. Okay. I wish you fought for a better cause. Okay, fight for a better cause. And right now, even if, and nobody is asking to give up the right on any place of worship, but go by the court process. Majid Hydari, another objection that has been raised is that this is a sacred area and only Muslims can gain access. You would be surprised to know that this is what the order of the court says from the 26th of April 2022. मस्जिद के जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता. It doesn't seem to be correct that only security, and this by the way goes out, Mr. Rashadi, to what you are saying. This is completely incorrect. The court order says it is not true that this can be used only by Muslims and security personnel, because during arguments, Anjuman Intizamiya Masjid ke Vidwan Adhivakta, the lawyer for Anjuman Intizamiya, said that masjid के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. Anyone of any religion can enter the mosque. Majid Hydari, hollow argument to say, oh, this is a place of worship, only Muslims and security personnel can enter. Majid Hydari. Padmaja Sahiba, firstly, I am of the opinion that man-made code of law be kept away from mental. 8 feet of Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, whatever, because a court order is not supposed to be about divinity, because then there will be a clash of divinity. But we have these issues. We have Shabrimala, we have Jallikattu, we have hijab, we have azan, we have this UP Masjid issue, because we have one entity which is known as RSS.
RSS is a party which does not allow the camera shooting of its meetings which are chaired by the Sangh Pramukh. If RSS disallows the video filming of its meeting, why should a camera come into a masjid which is essentially the has entity there of been any Muslims? RSS meeting that has been ordered to be filmed by the court? And if the court says it will bloody well be filmed, where does an RSS meeting compare to what a legal process is? What is the comparison, sir? When RSS is holier than thou, why don't we have a right to privacy over that? Go to court and you say, I want to film every single meeting by Mohan Bhagwat. If the court orders it, I wish you the best of luck. You film and watch every single meeting of Mohan Bhagwat. But there is no comparison, that is sir. not allowed. There is a total ban. What if tomorrow I go to the court with the same petition that why can't we see each and every meeting chaired by Mohan Bhagwat ji? You go to court, and if you win that case, you will get to see it. Although there are easier ways, most of these meetings are live streamed on their handle. You go watch it on their handle. Everything when BJP is in power and RSS is calling the shots. Sir, if you have a pet obsession with the RSS, go follow their handle, go to their YouTube page, watch all of their meetings. But what is the comparison? There is no comparison. Here is a legal process. You are like, I want to watch RSS meeting. See, if RSS can be holier than thou, what about the status of Muslims in this country? Nobody is holier than thou. Who may not have right of privacy? Nobody is holier than thou when it comes to the court. Why do you need a video filming? We had the video filming that. Very good question. You need a videography for two reasons. One, that there is a possible damage or defacement to the image of worship inside the mosque. One, and second, that they want that they should be allowed to worship inside, and to determine that the court wants video evidence and a report. That is why. Padmaja Sahiba, hath Kundan ko Arsi kiya, padhe likhe ko Farsi kiya. There is a full-fledged video that there exists a Babri Masjid. Where is Babri Masjid? Why do you need a videography? Why? बता दीजिए विजय शंकर तिवारी, why do you need videography? अब उस पर भी परेशानी है, आप क्यों देखना क्यों चाहते हैं अंदर? क्या है ऐसा जो आप देखना चाहते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल माजिद हैदरी कलीमुल्ला खान जो बात कर रहे थे, तो हम नहीं देखना चाहते, ये आम हिंदू देखना चाहता है। अभी बात कर रहे थे आरएसएस की बात कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे थे, भाजपा की बात कर रहे थे। ये मुद्दा पद्मजा तब से है जब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। अब ये आम हिंदू कोर्ट में गया है, ये आम हिंदू कोर्ट में गया है और अपना दावा ठोकने गया है कि ये हमारी आराधना केंद्र है, और आज भी ये आराधना केंद्र के रूप में ही मंदिर का मंदिर है, जिसकी अगर वीडियोग्राफी होती है तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये देखना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। अगर ये वीडियोग्राफी हो जाएगी तो इनके षड्यंत्रों की सारी पोल खुल जाएगी। चलिए बोलिए, मीडिया ने तो बड़ा इशू बना दिया। तो इसको नाराज मत होइए, आप बोलिए। असल इशू तो ये है, हम नहीं मना करेंगे आपको बोलने से। आप वीडियो पे भी हैं, नहीं नाराज में आप इसलिए हो कि आप फेयर नहीं है, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करिए ना। आप काउंटर करने के लिए आपके पास सवाल नहीं है, क्या आपके पास लॉजिक नहीं है? आप जानते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे। क्या जानते हैं? एक सिंपल सा सवाल है, कोर्ट का आदेश है, आप कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए। सिंपल। पद्मिया जी, कोर्ट के आदेश पे आना चाहता हूँ, बोलिए। कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिफ्यूज करते हैं इसको। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते ना सर। कल को एक सेकंड कलीमुल हाफिज साहब ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई आपका इनकम टैक्स स्लैब डिसाइड हुआ है, मैं कहूंगी मैं कॉन्स्टिट्यूशनली रिफ्यूज कर देती, नहीं दूंगी टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनली रिफ्यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता ना सर। नहीं, उसमें सजा है कोर्ट में, बिल्कुल। अगर मैं रिफ्यूज करता हूँ टैक्स देने के लिए तो इनकम टैक्स ऑफिसर मुझ पर सजा देगा, तो आप लगाएगा पेनल्टी मुझ पे। लेकिन आप कौन होते हैं? आप जो दिन भर आज सुबह से सजा दे रहे हैं उसको, मैनेजमेंट कमेटी को फिर जेल में डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, चैनल जो सजा दे रहा है सुबह से लेकर शाम तक, इस सजा का क्या करेंगे आप? अरे कोर्ट देखेगा ना, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, कोर्ट उसको डिसीजन लेगा। जब सिविल जज देखेगा कि मेरे कोर्ट की अवहेलना हो रही है और वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन ये चैनल जो सजा दे रहे हैं, इसका अकाउंट कहां से आएगा? सर हम कौन है सजा देने वाले? चलिए आप इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जो मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी है
उनको उठा करके यासीन साहब को जेल में डाल देना चाहिए। आप क्यों यासीन साहब के ऊपर ऐसा कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट दिस इज योर ओपिनियन। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट कर रहे हैं कोर्ट को, तो कोर्ट शुड एक्ट अगेंस्ट देम। चलिए बताइए रशादी साहब, रशादी साहब आप भी इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल सत्याग्रह करने वाले हैं तो हर किसी को करना चाहिए। कल को कहेगा कि भैया आपको मर्डर की सजा हुई तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट करता हूं, मैं नहीं मानूंगा ये सजा, कॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट। चलो बोलिए रशादी साहब, बोलिए मिस्टर रशादी। Just a second please, now we have something called constitutional rejection. We always learn everything, something new every day as we go along, because apparently now one there is a court judgment and then we have a constitutional rejection of what court say. Anyhow, go on Mr. Rashadi. 3 सेकंड मैं क्या प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दे रहा हूं। 30 सेकंड दीजिए कलीमुल हफीज। बोलिए रशादी साहब, बोलिए। हाँ, लीगलिटी पे बोलूंगा। 30 सेकंड। आपने कहा जो पिटीशन है उसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि श्रृंगार गौरी जी की पूजा करना चाहते हैं वो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो उनका आइडल है, जो उनके स्टैच्यू है, वो डैमेज ना किया जाए, उनको नुकसान ना पहुंचा जाए। राइट। अब मुझे 30 सेकंड आप बोलने दीजिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। जो मस्जिद की कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, यासीन साहब ने ये कहा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कमीशन को वीडियोग्राफी का, उसने ये कहा है कि जो पेटिशनर की पिटीशन है उसके अकॉर्डिंगली श्रृंगार गौरी टेम्पल की वीडियोग्राफी की जाए। श्रृंगार गौरी टेम्पल जो है, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, मेरी बात 30 सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। वो मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर नहीं है, उसके बाहर है। आप खुल कर आगे कीजिए। यासीन साहब भी ये कह रहे हैं आप वहां जाइए, हम आपको मस्जिद के प्रीमाइसेस के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं कहा कि मस्जिद की प्रीमाइसेस के अंदर आप जाएंगे। आप श्रृंगार गौरी की टेम्पल के हिस्से को वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोर्ट के ऑर्डर को बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसे रोकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इसे लीगल तरीके से रोकूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट का कंटेक्ट करूंगा। दूसरी बात, तीसरी और आखिरी बात ये कि जो आप बार बार कोर्ट को कोर्ट कर रही है, कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट ये लिखता है। मेरी बात पिछली बार कट गई थी, इसलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना जरूरी है यहाँ पर। हाँ। जो बार बार छोटी छोटी पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दी जा रही है, जबकि हाई कोर्ट में इस मसले पे ऑलरेडी एक जजमेंट पेंडिंग है जो आना है अभी तक। हाई कोर्ट कहता है कि इन दी ओपिनियन ऑफ दिस हाई कोर्ट, the court below should wait for the verdict in the petitions pending before the High Court and not to proceed further in the matter till the time a judgment is delivered. The judicial courtesy, देखिएगा, the judicial courtesy and the decorum warranted such discipline which was expected from the court below, but for the unfathomable reasons neither of the courses were taken, said Justice Padia. तो हाई कोर्ट खुद एक तरह से रिव्यू कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिस्टम को कि आपने बिल्कुल गलत किया, आपने डिस्ट्रिक्ट ने जुडिशियल कस्टडी फॉलो की, आपने कोर्ट का डिक्रोम फॉलो किया, आपने कैसे ये ऑर्डर कर दिया। तो अगर आप कोर्ट को कोर्ट कर रही हैं तो यू शुड रेस्पेक्ट द हाई कोर्ट मोर देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द civil court of the Varanasi district. Sir, there is no hierarchy of respect of the court's orders. The session court is very clear in what it has ordered. Now, if there has to be any challenge to it, it has to be done through the legal process, not through what Mr. Kalimul Hafiz is saying is a constitutional rejection. Anyhow, there is only a matter of a week in which this report has to be given. Hopefully, better sense will prevail and the legal process will be followed. For putting forward your views, thank you very much, all gentlemen, and Shazia Ilmi, and a very, very happy Eid Mubarak to everyone celebrating it tomorrow. Thank you very much for joining me.